Hello students, as you know that we are working on the supplementary and in which you have a second chapter called The Address by Margot Minako. So this is a story of a girl who is in search of her mother, or I can say in search of a maiden or the servant who was working at her home. So the war has destroyed everything, but some memories which are there in maiden's house. So the girl wanted to meet that servant's house, the maiden's house, therefore she can remember her mother. So she is in search of the address where she is living. So this is the beautiful story, begins with the finding the address and ends with that she don't wanted to go anywhere any time or anymore to visit this place. Why and what is the reason behind it and what is the condition of that girl? Let's see what is there in it. So this story begins with like that. This is a story of poignant account of a daughter who goes to in search of her mother's belongings after the war in Holland. अब एक लड़की है, वो कहाँ पे जाती है, जो उसकी मदर की जो बिलोंगिंगनेस यानी कि कुछ चीज़ें थी वो कहाँ पे हैं वॉर के बाद, हॉलैंड में जब वॉर हुआ था उसके बाद कई सारी चीज़ें यहाँ की उधर हो गई थी, तो उन सारी चीज़ों की सर्च में है. When she finds them, the objects evoke memories of her earlier life. जब उनको मिल जाता है तो उनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में वो कुछ सोचती है. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. पर जो कि वो क्या करती है, she decides to leave everything over there and वहाँ से वो resolve करके move on करना चाहती है. तो let's see how many dialogues are there and what is the story of it. Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. अब किसी ने पूछा आज भी आप मुझको जानती हो? तब एक वुमन ने दरवाज़ा खोला और छोटा सा दरवाज़ा खोला, पूरा दरवाज़ा नहीं खोला. She come closed. वहाँ पास में आती है और वहाँ पे खड़ी रह जाती है. No, I don't know you. वो क्या कहती है, नहीं मैं नहीं जानती आपको. I'm Mrs. S. daughters. अब कहती मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ. तो प्लीज़ रिमेंबर द नेम बिकॉज द मदर इज़ द मिसेस एस. तो आपको यहाँ पे पूछा गएगा कि प्रोटोगोनिस्ट की मदर का नाम क्या था, तो यू कैन राइट दैट मिसेस एस. ओके. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. अब क्या बात करते हैं कि मैंने वो इतना बताया फिर भी उसका एक्सप्रेशन से ऐसा नहीं लग रहा था. उसने इतना बड़ा हार्डली दरवाज़ा पकड़ के रखा था कि वो अब कोई दरवाज़ा खोलने वाली तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो मुझको आज मुझे याद कर रही है. अब वो सिर्फ मुझे क्या करती है, मेरी तरफ ऐसे ही घूर के ही देख रही थी. Perhaps I was mistaken, I thought. Perhaps it isn't her. I had seen her only once, flitting, and that was a year ago. It was most probable that I had rung the wrong bell. The woman let go of the door and stepped to the side. She was wearing my mother's green knitted cardigan. The wooden buttons were rather pale from washing. She showed that I was looking at the guardian and half hid herself again behind the door. But I knew now what was right. अब पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई गलत घर में आ गई हूँ, कहीं गलत घर की कोई घंटी बजा दी है, ऐसा मुझे फील हो रहा था. देन आफ्टर क्या हुआ कि मैंने जब उसको देखा, हाफ दरवाज़ा ओपन था, हाफ बंद था, तो उसमें से जो उसने कपड़े पहने थे उससे मुझे लगा कि नाउ दिस इज़ माई मदर्स कार्डिगन. यानी कि वो हाँ कुछ बहुत साल हो गए इसलिए पहले येलोइश हो गए क्योंकि पहनने के बाद, वॉश होने के बाद, पर मुझे पता था कि मुझे अब क्या करना है. वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क.
हाँ पर आप मेरी मम्मा को जानते हो, है ना? हैव यू कम बैक? सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। अच्छा तुम वापस आ गई हो, मुझे लगा कि कोई वापस आया नहीं है, ओनली मी। दैट गर्ल है, वो रिप्लाई करती मैं एक ही वापस आई हूँ। अ डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। अब डोर ओपन हुआ और उसके पीछे ही बंद हो गया, और क्या हुआ कि एक मस्टी स्मेल यानी कि एक स्मेल वहाँ से आ रही थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो जो वुमन लेडी है वो कहती है कि हाँ मुझे इस चीज़ का बहुत गिल्ट है, रिग्रेट है, पछतावा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तब वो क्या कहती है मैं यहाँ स्पेशली ट्रेन से आई हूँ और मुझे तुमसे बात करनी है। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन। आई कांट सी यू अनदर टाइम। तो क्या कहती है कि हाँ अभी ये वक्त सही नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं कहीं और टाइम पे मिलेंगे। शी नोडेड एंड कॉस्टली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। उसने दरवाज़ा खोला, बंद किया और ऐसा लगा कि उसके दरवाज़ा बंद करने से किसी को भी डिस्टर्ब हुआ हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, द शर्टन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। Someone stared at me, would then have asked and I wanted. Oh, nothing, the woman would have said it was nothing. अब जो वहाँ पे कर्टन कुछ थे, वो कर्टन हवा की वजह से हिले और वहाँ पे कोई मुझे स्टेयर कर रहा हो, मुझे देख रहा हो, तो मुझे लगा कोई नहीं, कुछ नहीं है। I looked at the name plate again. Darling, it said, in the black letter, white enamel, and on the jump a bit higher, the number 46। यानी कि उसने नेम प्लेट में देखा और नेम प्लेट में क्या लिखा था, डॉर्लिंग एंड 46। यानी कि वुमन का क्या नाम था, डॉर्लिंग था, उसके घर का नंबर क्या था, 46 था। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर अगो। इट हैड बीन इन फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज एंड स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और द अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड। I missed various things. My mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Dorling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then she had come regularly. अब क्या कहते हैं कि कई सालों के जब मैंने यहाँ पे आई वापस, तो मैंने देखा कि घर में कई सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस हुए। तो कई साल पहले मेरी मदर ने मुझे ये बताया था कि डॉर्लिंग का एड्रेस है और उसने कहा कि वो यहाँ पे रहती है। ऐसी बात ही क्यों थी, क्योंकि और उसकी मदर ये सरप्राइज इस चीज़ से होती थी क्योंकि जो लड़की है वो हर चीज़, घर में कोई भी चेंजेस होता था वो जान के पहचान लेती थी कि हाँ ये चीज़ घर में नहीं है। तो फिर वो उसकी मदर ने उसको इंट्रोड्यूस कराया कि ये मिसेस डॉर्लिंग है, वो किस तरह से, पहले उसके बारे में कभी नहीं सुना था, पर फिर ऐसा पता चला कि जब वो नहीं थी तो उसके मदर के साथ मिसेस डॉर्लिंग ही रहती थी। और अब कई सालों से उसे देखा नहीं था और उन्होंने कांटेक्ट भी कम कर दिए थे। फिर उन्होंने फिर से कांटेक्ट करना चालू किया। एवरी टाइम शी लीव्स हर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड हर मदर। उसकी मदर क्या, जब भी यहाँ से वो घर पे जाती थी तो कुछ ना कुछ लेके जाती थी। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। अब जो पूरी जो टेबल सिल्वर थी वो एक ही बार में लेके गई। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, जो यहाँ पे एंटिक प्लेट्स जो यहाँ पे टिंगी हुई थी वो भी लेके गई। शी हैड ट्रबल लगेजेस दोज लार्ज वाशेस। उसके पास इतना बड़ा सामान था फिर भी वो जो वाशेस थे वो भी। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ ट्रिक इन हर बैग फ्रॉम द कॉकरी। अब मुझे इतना था कहीं टूट वूट ना जाए, पर वो भी लेके गई। माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली, हाँ लेके गई, कोई बात नहीं। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ। शी इवन इंसिस्टेड, शी वॉन्टेड टू शेव ऑल माई नाइस थिंग्स। इफ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, शी सेज। उसे सॉरी, हाँ वो हर चीज़ लेके जाती थी, पर मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपनी मदर से जाके पूछूं कि तुम ये सब लेके क्यों जाने दे रही हो। पर उसकी मदर हमेशा कहती है
अगर ये बहुत अच्छी सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ पड़ी है, अगर वॉर हो गया तो कोई हमारे यहाँ बचने वाला होगा नहीं, तो डेफिनेटली कोई और लेके जाएगा, कोई गुम हो जाए। इट इज़ बेटर कि ये लेके जाए और संभाल के रखे। हैव यू अग्रीड विथ हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? आई आस्क्ड। मैंने मदर से पूछा कि क्या वो सचमुच सारी चीज़ें संभाल के रखेंगी, तुम मुझसे एग्री करती हो? एज इफ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड। हाँ, बहुत ज़रूरी होगा तो रखेगी। एज आई वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनकी इंसल्ट करती हूँ इस तरह से बात करना। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ डोर विथ अ फुल ऑफ सूटकेस और बैग। और हर बार वो कहाँ पे फुल सूटकेस भर के ही जाती है। My mother seems to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly, and after that we woke up, we spoke no more about it. अब मुझको मेरी मदर बहुत कन्विंस करने की कोशिश करती, पर वो हर बार नहीं कर पाती थी। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. I was walking in familiar places again for the first time since the war. But I did not want to go further than was necessary. I didn't want to upset myself with the sight of street and houses full of memories from a precious time. अब वो कहते इन सब सोचते सोचते मैं यहाँ स्टेशन तक पहुँच में आई, और इन बिटवीन कई सारी चीज़ें आई जिसको मैंने मेंशन नहीं किया और मैं उसको करना भी नहीं चाहती, बिकॉज दैट वाज ऑल वर ब्यूटीफुल मेमोरीज, एंड वॉर की वजह से वो सारी के सारी बहुत बर्बाद हो चुकी है। इन द ट्रेन back, I show Mrs. Darling in front of me again as I had in the first time I meet her. अब फिर से क्या हुआ, मैं ट्रेन में मैंने फिर से उसको देख लिया मेरे सामने। It was the morning after the day my mother had told me about her. I had got up late and coming downstairs I show my mother about someone out, a woman with a broad back. There is my daughter, said my mother. अब वो फिर से वही की बात कर रहे हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं कि मुझे इतने दिनों में नहीं पता था, मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने उसको देखा तो किस तरह से, जब मैं लेट उठी थी और वो बाहर खड़ी थी तो मैं उसने कहा कि सी इज़ माई डॉटर, मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द रॉक कोट रैक। शी वॉर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। हम इतना वो इंट्रोडक्शन पे इतना फोकस नहीं करती और उनके बारे में बताया। उसके हाथों में अपनी जो सूटकेस पड़ा था वो उसने उठाया और उसके बारे में बताया गया। तो उसने कौन सा ब्राउन कोट और शेपलेस हैट पहना हुआ था। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि वो लेडी ने क्या पहना हुआ था। तो ये भी एग्जाम्स में आ सकते हैं क्वेश्चंस MCQs में। Does she live far away? I asked, seeing the difficulty she has going out of the house with the heavy case. मैंने उससे पूछा कि यहाँ से बहुत दूर रहती है कि वो इतना सारा सामान लेके जा रही है। In Marconi Street, said my mother, number 46, remember that. तब वो बताती हैं फर्स्ट टाइम जब मिलते हैं कि मार्कोनी जो स्ट्रीट है वहाँ पे 46 नंबर का उनका घर है। I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboard and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all these years because they were things. अब क्या कहती हैं कि ये वॉर के बाद, आफ्टर द लिबरेशंस के बाद, मुझे आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू विजिट दिस प्लेस, इवन आई डोंट इंटरेस्टेड टू टेक ऑल दिस थिंग्स एट द सेम प्लेस। अब वो लेके गई तो ले जाने दो, मुझे वो सारी चीज़ें अब नहीं चाहिए। इतने सालों में जो बहुत कुछ चेंज हो चुका था। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम नॉर्मल अगेन। अब फिर से मुझे वो नॉर्मल लगने लगा। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, यानी कि जो उसने ब्रेड ओवन में रखा था वो क्या होता, ब्राइट, जो लाइटर कलर, डार्क होने लगा। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, अ रूम विथ अ व्यू were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all these possessions that must still be at the address. I wanted to see them, touch and remember. तो मैं जब अपने रूम में देख रही थी, everything was there, but
I noticed that something I was missing. The things which were taken by that Mrs. Darling, I really possessed about it, and I wanted to see all these things and wanted to touch it and wanted to remember it. So after my first visit in vain to Mrs. Darling's house, I decided to try a second time. तो इतने कुछ के बाद वो ट्राई करती है, लेट्स मीट सेकंड टाइम. नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी. अब जब वो दूसरी बार जाती हैं तो 15 साल की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला. आई आस्क हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम. मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी मदर घर पे हैं. शी सेड नो, माई मदर इज़ डूइंग एन एरंड. यानी कि मेरे घर पे नहीं है, वो बाहर है. नो मैटर, आई सेड आई वेट फॉर हर. मैं कोई बात नहीं, मैं उनका वेट करूँगी. आई फॉलोड द गर्ल अलोन द पैसेज. एन ओल्ड फैशन आयरन हंकुक कैंडल होल्डर हैंग नेक्स्ट टू अ मिरर. एक हंकुक का जो चीज़ है वहाँ पे मिरर के पास लटकी हुई है. वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कैम्बरसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक. हमने उसको यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो एक सिंपल सा सिंगल कैंडल स्टिक नहीं था. वॉन्ट यू सिट डाउन, आस्क्ड द गर्ल. बैठोगे नहीं? She held open the door of living room and I went inside past her. I stopped, horrified. I was in a room I knew and did not know. I found myself in the midst of the things I did want to see again, but which oppressed me in a strange atmosphere. Or because of the tasteless way of everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell of that hung there, I don't know, but I sarcastically dared to look around me. The girl moved a chair. I sat down and stared at the wooden tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the patterns. Somewhere on the edge where should be burn mark that had never been repaired. तो अब क्या कहती हूँ, मैं इस ऐसी जगह पे आ गई थी. I was feeling very awkward because the things were the same. But the atmosphere was changed. The room was very ugly, not furnitured, and the muggy smell was around like that. So the horrible things were that I was not ready to see all these things because everything was unarranged. But when it was there in my home, मेरे घर पे everything was arranged and clean. पर आज क्या लग रहा है, बहुत अलग सा लग रहा है. देन क्या करती है वो लड़की, जो वहाँ टेबल क्लॉथ पड़ा होता है वहाँ पे हाथ रख के उसको रब करती है. तो शी वॉज फीलिंग द सेम फीलिंग, वार्म फीलिंग आ रही थी उनकी. जो खुद की जब हम हमारी चीज़ कितने सालों के बाद देखते हैं तो जो प्यार आता है वही प्यार उसको उस पे आता है. पर उसमें कई सारे बर्न मार्क हो गए थे जो प्रिपेयर होने वाले नहीं थे. माई मदर विल बी बैक सून, शी सेड द गर्ल. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप. मुझे पूछें कि मेरी मदर अभी आ जाएगी, पर मैंने उसके लिए टी बनाई थी, क्या आप पियेंगी? थैंक यू. आई लुक्ड अप. द गर्ल पुट कप रेडी ऑन द टी टेबल. शी हैड अ ब्रॉड बैक जस्ट लाइक हर मदर. शी poured टी फ्रॉम अ वाइट pot. All it had was a gold border on lid. I remembered. She opened a box and took some spoons out. अब जो टी बॉक्स लेके आती है, टी टेबल पे जो लेके आती है पॉट, उसमें तो वहाँ पे देखती है कि वो वाइट पॉट भी किसका है, उसी का ही है. और वहीं उसमें से जो गोल्डन बॉर्डर है उसमें लीड की, वो देखती हैं, उनको सब कुछ याद आता है. फिर उसमें से कुछ स्पून्स निकालती हैं शुगर के लिए. दैट्स अ नाइस बॉक्स. आई हर्ड माई ओन वॉइस. इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम. अब उन्हें क्या कहते हैं, बॉस इट्स वेरी नाइस. आज खुद की आवाज़ से उसे कुछ डिफरेंट लग रहा था. ओह यू नो अबाउट देम, शी सेड, टर्न अराउंड एंड ब्रॉट मी my tea. She laughed. My mother say it is antique. We got lots more. She pointed around the room. See for yourself. हाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगा, you know ये एंटिक पीस है और हमारे पास तो बहुत सारे पड़े हैं. You can see this. I had no need to follow her hand. I knew which thing she meant. I just looked at the still life over the tea table as a child. I had always fascinated the apple on the pewter plate. अब क्या कहती हैं कि मुझे उसको हाथ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कौन सी चीज़ मेरी है मुझे पता ही थी. और मैं छोटे थी तब मैं यहाँ पे एप्पल है जो फ्यूटर प्लेट है उसमें वहाँ पे हमेशा एप्पल खाया करती थी.
We used it for everything, she said. Once we even ate off the plate hanging there on the wall. I wanted to show much, but I wasn't anything special. अब क्या होता, मैं सब कुछ वहाँ पे खाना चाहती थी, करना चाहती, यूज़ करना चाहती थी, पर अब वो इतना स्पेशल रहा नहीं था. I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. अब क्या कहते कि हाँ, कि आप सब कुछ देखते हो, अब आप आपके घर में भी नहीं होंगी. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. अब कहती हैं कि आप मिस तभी करते हैं, या तो आपने उसको छोड़ दिया होता है या आपने रिपेयर करवाया होगा और वापस नहीं आया होता है. Again I heard the unnatural sound of my voice and I went, oh, I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. It was very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. As she had never asked me before, I asked her which silver she meant, and she replied, surprised that it was the spoon, fork and knives, of course. And then was the strange thing, I didn't know the cutlery we ate off every day was silver. अब वो हर सिल्वर चीज़ की बातें करते हैं. मेरी मम ने बोला उसको रिपेयर करने का है, उसको सिल्वर बनाने, तो ये एक छोटा सा इंसिडेंस है जो उसको याद करती है. पर मुझे नहीं पता था कि कौन सी सिल्वर चीज़, वहाँ पे फॉक भी है, स्पून भी है, नाइफ्स भी है, सब कुछ सिल्वर का. इवन जो कटली है वो भी क्या था, सिल्वर ही था. तो वो लड़की हंसने लगी. आई बेट यू डोंट नो इट्स आइदर. आई लुक्ड intentionally at her. What we eat with? She asked. Well, do you know? She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I'll look. It's here. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. She had her hand on the drawer. Don't you want to wait for my mother? No, I must go. I walked to the door. The girl pulled the drawer open. I can't find my own way. As I walked down the passage, I heard the jingling of spoons and forks. अब क्या कहती है, वो ड्रॉवर ओपन ही करती है, उसी वक्त मैं वहाँ से निकल आती हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन का वक्त हो गया होता है. At the corner of a road, I looked up the nameplate, Marconi Street. It is said. It had been at number 46. The address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. I wouldn't go back there because the objects that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their values when, severed from them, you see them again in a strange surroundings. And what should I have done with them in a small rented room where the shade of blackout paper still hung along the windows, and no more than a handful of cutlery fitted with a narrow table drawer. I resolved to forget the address. Of all these things, I had to forget that would be the easiest. अब क्या कहती हैं कि इतने सारी चीज़ें के बाद मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं उन सारी चीज़ों को मिस करूं, उस एड्रेस को याद भी रखूं, क्योंकि जब मेरी जो फेवरेट थिंग्स थी, जो मेरी अच्छी हर चीज़ थी, आज वो उसकी सराउंडिंग्स बदल चुकी है, उनकी वैल्यूज़ बदल चुकी है. आज वो उस जगह पे नहीं है जिस जगह पे हम वैल्यू करके रखते थे. तब उस चीज़ को याद करने का कोई भी मतलब नहीं. इट इज़ बेटर टू forgot it and go to move on it, and this is the life where you will live very easily, and this is the easiest way to forget everything. तो यहाँ पे हमारी ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है. Then after you have 4 questions that you have to write down. Please read it carefully and write down it. If you don't have text with you, so pause the videos and write down the questions and send it to me. Or if you have doubts regarding anything, please let me know so I can resolve your problems. So let's conclude the video over here. Thank you.